उसको लेना है बोर्ड से आपको स्क्रीन पे लेना है। आप सबका इस फंक्शन में बहुत बहुत स्वागत। ज़्यादा लोकेशन है वो खाने यही देखता है। जी 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 जो आपका मैडम आ रहा है। सतीश आवाज बढ़ा दो। जूम आउट करिए मैडम का जो है कुछ पूरा डिस्प्ले नहीं हो रहा तो कर लो। रेलवे से कोई ऑफिसर है तो माइसेल्फ गोपीदला क्रॉली का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिला है रेलवे की तरफ से, दैट इज रैन कौशल विकास योजना। हमारा स्किल डेवलपमेंट के लिए दिस इज द नॉट बैड यार। सुनो कनिका इसमें और बोलना कि रेलवे में बहुत सारा काम होता है तो मैं स्किल डेवलप करूंगी अपने में, तो रेलवे में जो काम हो रहा है जो उनके कॉन्ट्रैक्टर है वेंडर है उनके साथ में लग करके मुझे मेरे इनकम का सोर्स मिल जाएगा इमीडिएटली। हाँ एम्प्लॉयमेंट में और ऋषभ तिवारी I think we can, but I think your sound is coming through clearly. Okay. Yeah. Kiran Chauhan. Good morning, ma'am. Good morning. There's no camera, Anjali, on where she is just now. So she will have to come to where you are or behind you. Somewhere behind you, that is the vision of the... Yeah. Can you see That's the vision of... Yes, now she's visible. Yeah. She should speak from behind you. Okay. No, behind you is fine. Not in on this thing. Okay. Kiran, Shikha Maurya. Okay. Alright. आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं किरण? मैम मैं अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। इसके थ्रू हम अपना कोई भी जॉब कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में या फिर कुछ अलग कर सकते हैं। अपना स्किल डेवलपमेंट करके कोई कंपनी में जॉब कर सकते हैं या फिर किसी को जॉब दे सकते हैं अपनी कंपनी को भी। ओके, वेरी गुड। और आपको पता है कि ये 3 हफ्ते की करीब की ट्रेनिंग है? यस मैम। ओके, मैम यहाँ पे हम लोग को टूल किट्स दी जा रही हैं जिससे कि हम लोग भविष्य में अपना खुद का टूल किट का यूज़ करके आगे हम लोग कोई परेशानी ना हो उसकी मदद से हम लोग अपना खुद का जॉब या काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे उनको हम लोग अपनी तरफ से बधाई देते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड किरण, एक्सीलेंट। Okay, so this is done, this is one. Then, ICF was 2. Yeah, then, Nirbandagao is also confirmed. 3. Then, do you have Matunga on the... एक बार हमारा जीम को फोकस करिए। जो बच्चे बैठे हैं उनसे भी और वही इंटरव्यू
बंद करा दो, AC बंद कर दो, फैन बंद कर दो, ठंडा से। Namaskar. Good morning, everyone. Honorable Minister of Railways, Adarniya Ashwini Vaishnav ji, respected Chairman and CEO Shri Suneet Sharma ji, all the board members present here today, all the locations, 75 locations which have joined, the general managers and the divisional railway managers who are there, on this wonderful occasion which we are gathered here today to launch a mission, Rail Kaushal Vikas Yojana. This is inspired by the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. This initiative is a part of a series of initiatives being planned by the Indian Railways during our celebration of the 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The Skill India mission aims to skill our country's youth and is a boon for the country's young workforce as well as the industry organizations. Indian Railways, being the largest single employer in the transportation sector, has a significant role to play in developing basic as well as highly specialized skills in the transportation sector. The Rail Kaushal Vikas Yojana is a step in this direction, which leverages the organization's capacity across the length and breadth of the country, contributing to nation development. The General Manager, BLW, was nominated as the Nodal General Manager to lead this initiative. I now request her and invite her to give her welcome remarks. Please. Honorable Union Minister for Railways, Communications, Electronics and Information, Shri Ashwini Vaishnav ji, it is my proud privilege to welcome you today to today's event of launching the Rail Kaushal Vikas Yojana on Indian Railways. Sir, your kind consent to launch the scheme is truly inspiring and motivating for all of us, including hundreds of trainees who have joined us today through the webinar. Under your guidance, sir, we are focused on inclusive growth. We have structured the Rail Kaushal Vikas Yojana towards employability and self-employment. Through CSR funding, Banaras Locomotive Works is giving trade-specific toolkits to all the trainees upon completion of training. Cooperation from the district administration has helped extensive outreach and publicity for this initiative with very good results. A very warm welcome to you, sir. I welcome Chairman and CEO Railway Board, Shri Suneet Sharma, who has reposed his faith in Banaras Locomotive Works by making us a nodal unit for implementation of this program. I welcome all the board members and senior officers of the Ministry of Railways to the event. A hearty welcome to all general managers, nodal officers of the Rail Kaushal Vikas Yojana scheme, heads of the training centers and all officials who have worked tirelessly to make this event a reality. A special welcome to all the trainees who have enrolled at the training centers of railways and production units in various technical trades. A warm welcome to all distinguished invitees, members of the press, media, ladies and gentlemen. आप सबका बहुत बहुत स्वागत। May I now request the Chairman and CEO, Mr. Suneet Sharma, to tell us about this program. Sir. नमस्कार। आज के हमारे सबसे आदरणीय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ उपस्थित मेरे सारे बोर्ड के साथी, सारे अधिकारी, फील्ड में हमारे सीनियर अधिकारी, जनरल मैनेजर्स, डीआरएम्स, हेड्स ऑफ द वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स और अन्य सारे अधिकारी, साथ ही साथ मेरे सारे सुपरवाइजर साथी, सारे वर्कर्स, ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन के हेड्स, ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर्स और सबसे अहम आज जो हमारे साथी हैं जो आज ये ट्रेनिंग लेंगे, मेरा सबको हार्दिक अभिनंदन। इंडियन रेलवेज बहुत आगे बढ़ चुका है। इट इज अ सक्सेस स्टोरी। 170 साल हम लोगों को हो गए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार निरंतर तौर पे ग्रोथ किया, चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी आई, उसको अडेप्ट किया। एक जमाने में हम लोग 80 में करीब 235 मिलियन टन ट्रैफिक कैरी करते थे। आज हम
1233 मिलियन टन कर रहे हैं और इस साल का हमारा लक्ष्य है कि हम 1450 मिलियन टन ट्रैफिक कैरी करेंगे। तो ये जो चेंजेस आए, जो ग्रोथ आई है, इसमें आप सबका योगदान है और सबसे अहम योगदान रहा है टेक्नोलॉजी का। हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन is one of the biggest organization, they say it is the biggest organization under single management in the world, the Indian Railways। साथ में हमारे जो 12 लाख साथी हैं, ये सब हमारे साथ आज जुड़े हैं। हम लोगों ने जो ये ग्रोथ हुई, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो हमने अडेप्ट किया, उसमें आप सबकी भागीदारी रही है। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप उसको लोकोमोटिव में ले लीजिए, पहले स्टीम इंजन, फिर उसके बाद डीजल, अब इलेक्ट्रिक में भी टेक्नोलॉजी में बदलाव आए। पहले थायरिस्टर कंट्रोल आए, अब आईजीबीटी कंट्रोल आ गए, तो मॉडर्न प्रोपल्शन सिस्टम आ गए, कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल आया। आप अपने कोचेस को ले लीजिए, पहले वुडन बॉडी कोचेस हम लोग उसमें जाते थे, वुडन बॉडी के बाद हमने स्टील बॉडी कोचेस लिए, फिर स्टेनलेस स्टील कोचेस हुए, फिर बोगीज में बदलाव आया, फिर एलएचबी कोचेस आई, अब हाई स्पीड कोचेस, वंदे भारत की बोगीज आनी शुरू हो गई है। तो बार बार चेंजेस सिस्टम में आते गए। ऐसे ही वैगन्स में आए, वुडन वैगन्स थे, पेलोड टू टेल रेशियो बहुत कम होता था, अब बढ़ के ये 2.5, 3 और अब हम लोग 4 तक का एम करने की सोच रहे हैं। तो जगह जगह पे इस बदलाव के साथ साथ हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी आई, और ये ट्रेनिंग ना सिर्फ रोलिंग स्टॉक में रही, बल्कि इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में, सिविल के जो हमारे ट्रैक हैं, जिसमें हमने पहले जमाने में 90 kg रेल हम यूज करते थे, 90 पाउंड की, उसके बाद आप आज की तारीख में 52 और फिर 60 kg रेल, 265 आर रेल, और अब हेड हार्डेंड रेल्स की बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आया। ऐसे ही सिग्नलिंग इंस्टॉलेशंस में पहले हमारे जो भी थे वो मैकेनिकल इंटरलॉक सिग्नल्स थे, उसके बाद अब आप धीरे धीरे करके आपने चेंज किया, पैनल इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, फिर कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, और अभी हम कवच की बात कर रहे हैं। तो ये सभी सारे जो चेंजेस हुए सालों में, उसमें सबसे अहम योगदान हमारे स्टाफ का रहा है, क्योंकि ये सारे चेंजेस तभी संभव थे जब मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अपने आप को अलाइन करें। साथ ही साथ हमने ना सिर्फ अपने स्टाफ के लिए ये अलाइनमेंट किया, टेक्नोलॉजी में जो भी बदलाव आता गया हमने सीखा, साथ ही साथ जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पूरे देश में हमारे फैले हुए लोग हैं, उनका, उनकी योग्यता का, उनके कौशल को अपग्रेड करने के लिए ये एक हमारा कदम है। और ये कदम हमने पूरे देश में, अगर आप देख लें पूरे देश में, चाहे आप अमृतसर से शुरू करें, चेन्नई ले लें, कोयम्बटूर ले लें, वेस्टर्न साइड में दाहोद है, जोधपुर है, और अगर आप एनएफ साइड में जाएं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाए तो डिब्रूगढ़, पूरे देश में आज ये हम ट्रेनिंग को लॉन्च कर रहे हैं। ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो हमारे पिछड़ जाति हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे सकें, उनकी योग्यता, उनकी स्किल को डेवलप कर सकें, जिससे कि वो कुछ काम, उनको अच्छा कार्य मिल सके, उनका अपना डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो बदलाव है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की एक इंस्पिरेशन थी कि ये हम लोग इसको शुरू करें और बड़े पैमाने पर करें, क्योंकि उसी का रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रेनिंग कोर्स है जो आज बनारस में से लॉन्च हुआ, लेकिन अब बाकी सारे सेंटर्स में हो रहा है, मैं एक बार आप सबको फिर से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे डेडिकेटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ये सब मिलके इस योजना जो हमने शुरू की है इसका सक्सेसफुल कार्यान्वयन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस रेल कौशल विकास योजना को अपने कर कमलों द्वारा लॉन्च करें। आदरणीय मंत्री जी, आप हमारे लिए एक गाइडेंस और का सपोर्ट है। मैं आपसे आमंत्रित करती हूं कि आप हमें एड्रेस करें। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उपस्थित ऑफिसर्स, देश के 75 सेंटर्स पर उपस्थित रेलवे के ऑफिसर्स और ट्रेनीज,
आप सबको आज रेल कौशल विकास योजना के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई। आज दो विशिष्ट दिन है। पहला विश्वकर्मा पूजा। रेलवे में जिस तरह से हम लोग एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है। हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में विश्वकर्मा जी देवता की बहुत मान्यता है और बहुत हम उनको मानते हैं और आज उनकी पूजा करते हैं। आप सबको विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक दूसरा विशिष्ट दिन है। एक युग पुरुष जो कि भारत को अमृत काल में ले जाने वाले ऐसे प्रणेता, ऐसे नेता, ऐसे एक विशिष्ट व्यक्ति का जन्मदिन भी है। हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके दिल में बसने वाले, हम सबको गाइड करने वाले, हम सबको लीड करने वाले श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे बहुत जोर से तालियां। आज ये रेल कौशल विकास योजना जो 50,000 बंधुओं को, हमारे मित्रों को ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये हमारा रेलवे की तरफ से छोटा सा माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट है। उनके जन्मदिन के अवसर पे प्रधानमंत्री जी का आज आप देखें, उनके विजन में स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, हुनर विकास एक इंटीग्रल पार्ट है उनके विजन का। हम सब जिस भी परिवार से आए, जैसे भी जगह से आए, हम सब ने देखा कि जब हमारे एजुकेशन लेवल्स इंप्रूव हुए, हमारा स्किल लेवल इंप्रूव हुआ, तो हमारा सोसाइटी में इकोनॉमिक स्टेटस, सोसाइटी में स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, हम लाइफ में ऊपर आ सके। वो तभी संभव है जब हम आज के समाज की जरूरतों के हिसाब से हमारी उपयोगिता को बढ़ाएं, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं, हमारे स्किल के लेवल को बढ़ाएं, हमारे नॉलेज के लेवल को बढ़ाएं और हम सोसाइटी में और ज्यादा हमारी वैल्यू बढ़ सके। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट का आज प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, रेल कौशल विकास योजना, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन निहित है। हम 75 सेंटर्स में 50,000 मित्रों को इसमें ट्रेनिंग देंगे। अभी 4 ट्रेड्स डिसाइड हुई है शुरुआत में, फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन। और ये चारों के चारों इतनी रेलेवेंट ट्रेड्स हैं क्योंकि ये ट्रेड्स किसी भी इंडस्ट्री में एवरग्रीन ट्रेड्स हैं, जरूरत होती ही होती है इनकी। मेरा रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से और स्पेशली जनरल मैनेजर BLW बनारस लोको वर्क से और जितने भी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं उनसे, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिग्नलिंग से रिलेटेड और कंक्रीट की कैसे पोरिंग होती है, कंक्रीट की कैसे सेटिंग होती है, किस तरह से कंक्रीट की मिक्सिंग होती है, वो ट्रेड, रॉड बेंडिंग, जिससे कि अच्छे से कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको अच्छे से बनाया जा सके, कंक्रीट की टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स का रिप्लेसमेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कैसे उसको सेफली कार्ड को निकालना है, उसको रिप्लेस करना है, या पे कहीं पे छोटी सी सोल्डरिंग अगर खराब हो गई तो सोल्डरिंग को ठीक करना है। इस तरह की ट्रेड्स को भी इसमें ऐड कीजिए। ये आज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है, मोबाइल का जमाना है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स है, इवन एयर कंडीशनर के अंदर भी चिप्स लगती हैं। तो इस तरह का जो जमाना है, इस जमाने में ये ट्रेड भी बड़ी रेलेवेंट रहेगी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से हुई इस प्रोग्राम में? सबसे ज्यादा खुशी इस चीज से हुई कि एकदम रिमोट एरियाज में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स लग रहे हैं। दाहोद, मंचेश्वर, बोंगाईगांव, रंगिया, मेरी पिल्लम, इस तरह के ऐसे रिमोट एरियाज जो कि बड़े शहरों से दूर हैं और वहां पर भी ये ट्रेनिंग सेंटर्स आयोजित हो रहे हैं। आप सब जानते हैं मोदी जी का विजन अंत्योदय का विजन है, उनका विचार अंत्योदय का विचार है। अंत्योदय का विचार क्या है? अंत्योदय के विचार में ये परिकल्पना है हमेशा, समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को भी हम अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, उनके लाइफ में एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ला सके, एक गुणात्मक परिवर्तन ला सके। ये वो विचार है जिसमें बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हमारे भाई और बहन हैं
उनकी जिंदगी में कैसे हम परिवर्तन लाए, ये वो विचार है। गरीब को, वंचित को, दलित को, शोषित को, आदिवासी को, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सके, उनकी लाइफ में किस तरह से क्वालिटेटिव चेंज लाए, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाए, ये वो विचार है अंत्योदय का विचार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सबको हमेशा ध्यान में रखना है और हमारे सारे प्रोग्राम्स को हमेशा उसी हिसाब से देखना है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के पास बेनिफिट पहुंचे। जैसे कल टेलीकॉम का रिफॉर्म हुआ, तो टेलीकॉम रिफॉर्म में जो फोटोकॉपियर्स थे, जो पियोन्स थे, जो रात में 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक जाके रिफॉर्म का जो नोट था, कैबिनेट नोट, वो जाके सही जगह पे डिलीवर करके आए, उनको धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि केवल ऑफिसर्स और सीनियर लोगों ने ही काम नहीं किया, काम सबने किया। काम तभी होता है, सक्सेसफुल तभी होता है जब सभी लोग उससे जुड़ते हैं, और विशेषकर जो एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, जिनकी कोई केयर नहीं करता कभी भी, उनकी केयर करना हम सबका कर्तव्य है। तो मेरा निवेदन है सारे सीनियर ऑफिसर्स से, इसी भावना के साथ हम काम करें। ये जो आज आपने प्रोग्राम बनाया है वो उसी भावना के तहत है, उसी भावना में निहित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, और आज हमारा रेलवे की तरफ से छोटा सा मोदी जी आपको गिफ्ट है, पीएम साहब आपको ये हमारा गिफ्ट है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को अच्छे से मेरे जो साथी इसमें ट्रेनिंग लेंगे उन सब से मैं निवेदन करूंगा, बहुत मन लगा के काम करें, और जो हुनर सीखने का मजा है वो मजा अलग है। मुझे आज भी वेल्डिंग करने में इतना ही मजा आता है। मैंने 7-8 महीने पहले लास्ट टाइम वेल्डिंग की थी। सोल्डरिंग करने में आज भी मुझे उतना ही मजा आता है जितना 20-25 साल पहले जब पहली बार सीखा था। पहली बार जब वेल्डिंग की थी, याद है वेल्डिंग का जो हमारा मास्टर था, इंस्ट्रक्टर था, उसने कहा कि साहब आज रात में आप आंख पे चाय की पत्ती, जो चाय पीने के बाद जो पत्ती बच जाती है, उसको कपड़े में बांधना और जाके आंखों पे रखना, तो आपकी आंखें एकदम अगले दिन ठीक रहेगी। तो इतना मजा आना चाहिए काम में, ऐसा मजा आना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद भी रहे, और उस काम में करने का। तो मेरे जितने भी यंग साथी आज 75 सेंटर्स पे बैठे हैं, उन सबको मेरा निवेदन है, इस काम में आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर मजा लीजिए, और इसको काम को इतना गुणात्मक, इतना क्वालिटेटिव तरीके से सीखिए कि आपको किसी भी स्किल कंपटीशन में जीतने का मौका मिले। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उड़ीसा का। एक आदिवासी बच्चा उसने 4 तरह के स्किल्स में ग्लोबल स्किल्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें कोरियंस थे, जापानीज थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे। इंटरनेशनल ओलंपियाड स्किल्स का इंटरनेशनल ओलंपियाड में उस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता। तो मैं उससे मिला, मैंने उसको एक ही चीज पूछी, बेटा ये जो गोल्ड मेडल तूने जीता ये कैसे जीता? उसने, लड़के का नाम मुझे मुंडा सरनेम था उसका, केवंझर जिले का था, केवंझर या मयूरभंज जिले का था। उसने मुझे बताया आंखें खोलने वाली बात है। उसने कहा साहब मुझे इसमें मजा आता है। उसने कहा मैंने उसको पूछा मजा आने का क्या मतलब है? उसने कहा मुझे इस काम में कभी वो करते हुए ये खराब नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इतना आनंद आ रहा था उस काम में। तो जब काम में आनंद आता है, काम में मजा आता है, तो वो काम नहीं करता, फिर वो अपने लिए एक जॉय बन जाता है, एक प्लेजर बन जाता है, एक जो जैसे हम कहते हैं ना कि आज बहुत मजा आया काम करने में, जैसे टेलीकॉम रिफॉर्म करने में बहुत मजा आया, तो वो वाली बात हो जाती है। तो उसी स्पिरिट के साथ सीखिए इसको, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मन न लगे तो छोड़ के चले जाइए, कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक काम नहीं अच्छा लगा, दूसरा काम ज्वाइन कर लिया, दूसरा काम अच्छा नहीं लगा, तीसरा काम, तब तक ढूंढते रहिए लाइफ में जब तक कि आपको अपनी पसंद की चीज न मिल जाए। लेकिन जो भी रहना चाहे वो पूरा मन लगा के करें और उसमें आनंद लें, और उसी में प्रार्थना है, वही भगवान है, वही काम आपका भगवान है, हमारा भगवान है, वही हमारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। माइक सर्टिफिकेट
There are some young participants here who are very keen to interact with the Honorable Minister. From Banaras, there was a young girl called Kiran who was very keen to speak to the... So will you please connect us to BLW? Good morning, ma'am. Good morning, all of you. My name is Kiran. मैं पहले प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये रेल कौशल विकास योजना चलाया, जिससे हम लोगों को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। हम लोग का स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें हम लोगों को बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारा हम लोग को आगे चल के बहुत सारा फायदा होगा, जिससे कि हम लोग कंपनी में जाके जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को BLW में हम लोग को टूल किट्स भी दी जा रही हैं, जिससे हम लोग अपना सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिससे हम लोग अपना ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू किरण, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कौन सा ट्रेड सीख रहे हो किरण? मैम सर वेल्डर। वेरी गुड। वेल्डिंग में बहुत मजा आता है, ध्यान रखना ऐसा मजा है वो कभी जब चिपकने लगती है रॉड, कैसे ठीक टाइम पे रॉड को हटाना है। यस सर। और वेल्डिंग में बेटा ऐसे सीखना कि एकदम स्मूथ वेल्डिंग हो। यस सर। उसके ऊपर जब आप वेल्ड को देखोगे, वेल्ड को देखते ही पता चल जाता है कि अच्छी क्वालिटी है खराब क्वालिटी है। यस सर, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे से हम लोग को टीच कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है ये ट्रेनिंग करने में। और यहाँ मैं आपके साथ आके वेल्डिंग करूंगा फिर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार गौरव भाई। कौन सी क्वेश्चन थे? वेरी गुड वेरी गुड। वाला सीखिए, बहुत अच्छे से सीखना, मन लगा के सीखना। थैंक यू सर। थैंक यू। Can you go to Arjun now? Hello, ma'am. Do you want to do this? Why do you want to do this training? मैम मैं इससे अपने आने वाले करियर के लिए बेस्ट पोजीशन है, इससे मैं आगे बहुत कुछ करने को सीखने को मौका मिलेगा और इससे मैं प्राइवेटली एंड गवर्नमेंटली दोनों सेक्टर से जॉब करने का मौका मिल सकता है इससे मेरे को। कौन सी ट्रेड सीखना चाहते हो? मैं इलेक्ट्रिशियन। बहुत अच्छा। इंस्ट्रूमेंटेशन भी साथ में सीखने की कोशिश करना। यस सर। इंस्ट्रूमेंटेशन भी सीखना, वो भी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिशियन के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन का मैच अच्छा होता है। हाँ सर, यस सर, सीखेंगे सर। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर। Can we go to Samastipur now? समस्तीपुर, अंकित, कौन सा ट्रेड सीखना चाहते हो? फिटर। हेलो मैम। क्योंकि कभी भी टाटा स्टील में देखना, जो फोरमैन बनता है वो फिटर से ही बनता है, और जो टेक्नीशियन में ऊपर चढ़ता है वो फिटर बहुत अच्छा फिटर होना चाहिए। साथ में कोई एक और ट्रेड हो, वेल्डिंग हो, दूसरी कोई चीज हो, मशीनिंग हो, लेकिन फिटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से सीखना, मन लगा के सीखना, इसमें इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है आपके लिए। जी सर, थैंक यू। और साथ में ड्राइंग को कैसे रीड करना होता है, पढ़ना होता है, ड्राइंग को कैसे समझना होता है, वो भी जरूर सीखने की कोशिश करना है ना। जी सर। अब आपकी लाइफ मिलीमीटर्स में रहेगी आगे भविष्य में, हमेशा MM में देखोगे हर चीज। गुड, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। Thank you so much. We can go to New Bongaigaon in NF Railway. New Bongaigaon, NF Railway, can you all please connect? जी हाँ मैम। हाँ, कौन सी ट्रेड की ट्रेनिंग करना चाहते हो? This is the largest number, about 110 participants in NF Railway in this one center, and they were very keen to interact. Srinath, Rupa, हाँ बोलो, कौन सी ट्रेड की ट्रेनिंग करना चाहते हो? मैम मैं फिटर में ट्रेनिंग ले रहा हूँ।
आप कहाँ से आते हैं? मैं बंगाईगांव से हूँ। यहाँ से अप्रोक्स 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। हाँ। और कहाँ से आए बच्चे यहाँ पे आपके सेंटर में? सर यहाँ पे बच्चे हमारे सेंटर में आसपास के जिले से भी है, कुछ दूर से भी आए हुए स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। वेरी गुड। इसके अलावा भी कोशिश करेंगे नॉर्थ ईस्ट में और भी इंटीरियर में जाके कैसे ट्रेनिंग के सेंटर खोले जाए। वैसा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का विजन है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी घर के कितनी नजदीक मिले, वैसा मोदी जी सोचते हैं। और आप जाने हैं, आपको पता ही है कि करीब हर राज्य में रेलवे कैसे पहुंचे, उसके लिए भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो आप बहुत अच्छे से मन लगा के सीखिए इसको। जी सर मैं समस्त पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की तरफ से आदरणीय सर को हमारे तरफ से नमस्कार देना चाहूँगा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन है उनको भी पूरे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप अपनी भाषा में बोलो ना, आपकी भाषा क्या असमीज है? हेलो सर। नहीं सर, मैं हिंदी भाषी हूँ। कोई असमीज भाषी है इसमें? सर असमीज भाषी भी है कुछ लोग। बोलो ना, असमीज में बोला, अच्छा लगेगा सुनने में। सर मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं हिंदी में बोलूँगा। आप दूसरे बोलो कोई। आप बोलो बहन। मैडम आप बोलिए, असमीज में बोलो। गुड मॉर्निंग सर। असमीज में बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, मोर नाम रूपा माली है। मैं वेल्डर डिपार्टमेंट आसू। वेरी गुड। रूपा बहुत ही अच्छा करना चाहते हो। बहुत अच्छा। देखो कितनी स्वीट भाषा है, अपनी भाषा में बोलना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली सर मेरा मदर टंग बंगाली है, पर मुझे नहीं आता है। गुड। देखो देश में कितनी भाषा है, बहुत अच्छा। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। I'd like to thank our Minister for being here today and for launching this mission. To the Chairman and CEO for giving us the guidance. All our board members, thank you so much, sirs, for being here today and encouraging us. General Manager PNW for being the nodal organization and ensuring its implementation. We have even done the course curriculum, and as the Honourable Minister has said, we will include the list of instrumentation, concrete, and the other names which have been given by the Honourable Minister. To all the general managers, all the participants, the 1,000 participants who are here, all the instructors, thank you so much for being leading this entire mission. And once again on Vishwakarma Puja Day, बहुत बहुत बधाई आप सबको। नमस्कार। all the participants the best of luck. आप लोगों ने मंत्री जी का बात सुना, प्लीज अपना ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लेना, आपको ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। तो जैसे मंत्री जी ने कहा, मन लगा के करिए, थोड़ा ऐसे करिए ताकि उसमें आपको मजा आए, अगर ट्रेनिंग छोड़ के मत जाइए। देखिए अगर आप ट्रेनिंग छोड़ के जाएंगे तो आपको किट भी नहीं मिलेगा। और आपको ये किट किसके सौजन्य से मिला है, मैं आप उनको जरा बुलाना चाहूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अब आपको जो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो आपको किट्स मिली हैं इसका पूरा उपयोग करें, सीखें, और जो BMW की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर पूरा ध्यान दें और करें। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Please.
मैम की कुर्सी है। ललित ये जो रेल कौशल विकास योजना है, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के से ही इंस्पिरेशन ड्रॉ करके बनाया गया है। जैसे आप जानते हैं, रेलवे एक टेक्निकल सेंटर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ पूरे कंट्री में जगह जगह टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। ये सेंटर्स बनाए तो हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग के थे और अप्रेंटिसेस की ट्रेनिंग के थे, मगर फिर भी जितना उसमें कैपेसिटी है, हर रेलवे ने कोशिश की है, हर प्रोडक्शन यूनिट ने कोशिश की है कि निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। सबसे पहले ट्रेनिंग निःशुल्क होगी, फिर बैचेस बनाए गए हैं और अभी शुरुआत में सिर्फ 4 ट्रेड्स बनाए गए हैं, जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने खुद उनको ड्रॉ किया है। उसमें 100 घंटे का प्रोग्राम है, 18 दिन का कोर्स है। इसके दौरान बच्चों को वेल्डिंग, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट या फिटर, इन चारों ट्रेड में से चुनना होता है। बच्चे आते हैं बैचेस में। हमारे यहाँ बनारस में 15-15 साइज का बैच है, कहीं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा 75 ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने के तादाद में हैं और पूरी इंडियन रेलवेज के 75 ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं इस तरह से देंगे ट्रेनिंग, ताकि 2024 तक कम से कम 50,000 बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें। और ट्रेनिंग कोर्स को ऐसे बनाया गया है ताकि उसके बाद या तो वो अपना काम खुद कर सकें या कहीं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग के बाद एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो ट्रेनिंग अभी है उसके ऊपर और ट्रेनिंग में लेके और भी इनको स्किल्स मिल सके। ऐसा है कि अगर हम बच्चों से जैसे बात किए हैं, जब ये आए हैं हमारे यहाँ, जो 60 बच्चे आए हैं, सबकी सब तैयारी कर रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए भी। उनको लगता है कि एक ऐसा हुनर है जो उनको अभी तक जो पढ़ाई कर चुके हैं उसके ऊपर एक और लेयर ऑफ स्किल बनाता है। और जो प्रधानमंत्री का विजन था कि जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल हुनर प्राप्त करके ही आगे बढ़े। अगर बिना हुनर का बच्चा हो और ऐसा बच्चा हो जिसने हुनर सीखा हो, दोनों में अंतर आ जाएगा। इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इनका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जाके वो जॉब मार्केट में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सके। कटिया जी आप पूछें। बाद में मौका वरीयता दिए जहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो बच्चे आए थे, जिन्होंने हमसे बात की, हमने उनसे बात की, बहुत 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आई। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? एक तो प्रेरणा मिली कि उनके खुद कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जाके आप ये हुनर प्राप्त करिए। और ये बच्चे सब जानते हैं कि उनको अधिक से अधिक पढ़ाई करनी और फिर जॉब लेने के लिए या तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे या सरकारी एग्जाम देने के लिए, सब बच्चे जानते हैं। और उनको लगता है कि जितने हुनर उन्हें मिले उतना अच्छा है। तो वो ये नहीं, और ये भी जानते थे कि DLW में किस तरह से काम होता है। तो उनको लगता है कि जब वो एग्जाम के लिए बैठेंगे तो उनको ये हुनर प्राप्त हुआ है, उनको ट्रेनिंग की वजह से उनको वो जब एग्जाम में बैठेंगे तो और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और तीसरी चीज़ यह है कि जो उन्होंने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, जैसे कि ट्रेनिंग संस्था में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे आकर उनको प्रैक्टिकल तौर पर उसको इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, उससे उनकी सीख बढ़ जाती है। और जो हमने ये टूल किट देने का इरादा किया है, उससे फ़ायदा क्या है कि वो जरूरत नहीं कि कोई जॉब ढूंढे, वो अपना खुद का भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग है, वो कहीं बैठ के किसी का पंखा ठीक कर दिया, किसी का फ्रिज ठीक कर दिया। जैसे फिटर का ट्रेनिंग है, परमानेंटली उनको दे दिया। बिल्कुल वो परमानेंटली उन्हीं का हो जाएगा अगर वो पूरा कोर्स कंप्लीट करे और पास करे। 21 दिन का है ये 18 से लेकर 19 दिन में खत्म हो जाएगा। वैसे 18 दिन कर जाएगा। 1000 का टारगेट रखा गया है। हर प्रोडक्शन यूनिट पूरे 3 साल में 1000 बच्चों को ट्रेन करेगा। एक प्रोडक्शन 7 प्रोडक्शन यूनिट है। अगर एक प्रोडक्शन यूनिट में कई 1 से अधिक भी ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं। और रेलवे जो है वो 2500 करेंगे।
रेलवे मतलब जोनल जोन 17 जोन यहाँ पे अभी 60 बच्चों का है। चारों फीडर का मिला के केवल नहीं, चारों का मिला के 15 की बात। 15 के बिकॉज यहाँ पे अन्य ट्रेनिंग भी चल रही है, अप्रेंटिस भी चल रही है, ITI की भी ट्रेनिंग चल रही है। बाकी इससे इतर मैडम कुछ अपने बरेका के बारे में कुछ बरेका अब बस इस तादाद पे है कि आज विश्वकर्मा दिन है तो आज पूरा बरेका सजा हुआ है, अपनी मशीन की हम लोग पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद बस हमारा टारगेट ये रहेगा कि 300 से अधिक जो लोग को बनाने हैं, हमें इस साल पूरा टारगेट करना है। शुरू में थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ा सा जो सप्लाईज में दिक्कत आ रही थी, अब वो धीरे धीरे सुधर रही है। हमारा पूरा का पूरा फोकस अभी है कि हम लोग अपना टारगेट पूरा करें। कुछ नया इनोवेशन जो अगले साल है, अगले साल का जो टारगेट मिला है उसमें 9000 हॉर्स पावर की लोगों का भी टारगेट मिला है। हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और साथ साथ ये जो आपने देखा होगा कि इस बार इतनी बारिश हुई है, उसके बावजूद जो आसपास के गाँव हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई थी MLA साहब ने की थी, उसमें हमने कोशिश की कि उनको भी असुविधा न हो, हमें भी ना। तो हमारा अभी तो सारा है कि इतना बारिश हो रहा है, पानी निकलता है। मैं उसके बाद ही बताऊंगी कि और क्या इनोवेशन, बट ये बहुत बड़ा इनोवेशन था कि हमारे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर साहब ने बहुत सारे पंप लगाए, बहुत सारे ड्रेन्स को साफ किया और उनके चेम्बर्स बनाए ताकि पानी का निकास हो सके। वाराणसी में और आज हमारे साथ BLW वाराणसी की महाप्रबंधक अंजलि गोयल जी हैं। आप सबको बता दूं श्रोताओं, आज पूरे देश भर में रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की गई है माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। और इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हैं BLW वाराणसी की महाप्रबंधक श्रीमती अंजलि गोयल जी। तो मैडम, हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे योजना का, रेल कौशल विकास योजना जो है, इसकी मूल अवधारणा क्या है और इसको लेकर किस तरह की रणनीति आगे बढ़ाई गई है, कैसे बच्चों को जोड़ा जाएगा और आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कैसे उसको मदद किया जाएगा। ये जो रेल कौशल विकास योजना है, ये पूरी तरह नरेंद्र मोदी जी के विजन से प्रेरित है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक विजन है कि युवा पीढ़ी जो है वो पूरी तरह से हुनर प्राप्त होकर ही आगे बढ़े। उन्हें ये मालूम है कि अगर बच्चे में हुनर हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ती है। उनका ये विजन था कि युवा पीढ़ी पूरी तरह से स्किल्ड हो। तो हमारे यहाँ टेक्निकल स्किल का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए यहाँ इनिशियली बनारस ने 4 प्रोग्रामों के डिज़ाइन किए हैं, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल मशीनिस्ट और फिटर। और यही पूरे इंडियन रेलवेज ने अडॉप्ट किया है, 17 जोनल रेलवेज और 7 प्रोडक्शन यूनिट्स। आगे जाके और भी ट्रेड्स को बनाया जाएगा, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग हुआ है, जैसे हमारे कंपनी में आता है सोल्डरिंग एक्सेट्रा, उनको भी बनाया जाएगा। इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री के विजन को ऐसे आगे लेके जा रहे हैं कि 50,000 बच्चे को निःशुल्क ट्रेनिंग रेलवे देंगे। और कोशिश की जाएगी कि जैसे हमने किया है कि उनको किट भी दिया जाए ट्रेनिंग के बाद, अन्य लोग भी ऐसा करेंगे। उससे सिर्फ वो एम्प्लॉयमेंट नहीं सीख करेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, उससे उनका कॉन्फिडेंस और ये विजन है आत्मनिर्भर भारत की। बिकॉज आत्मनिर्भर भारत मतलब इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो और विदेश में हो, उसके लिए स्किल्स बहुत जरूरी है, इसलिए इसका स्किलिंग जी, स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो अभी वाराणसी सेंटर में कितने बच्चे अभी इस बार एडमिशन लिए? हमारे यहाँ 60 के करीब बच्चों ने एडमिशन लिया है, चारों ट्रेड में 15-15। जी, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? उनको उनके जो स्कूल के मार्क्स हैं 10th के बाद, उसका जो मेरिट बेस्ड होता है वो क्राइटेरिया जी, उसका लिस्टिंग की जाती है, फिर एक वेट लिस्ट बनाई जाती है। कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स है? 18 दिन का कोर्स है, 100 घंटे का कोर्स। जी, आगे फिर नेक्स्ट बैच कब से प्रारंभ? बस जैसे ये कोर्स खत्म होगा उसके कुछ ही दिन बाद दूसरा बैच। जी, तो और बच्चों को निःशुल्क सारी चीज़ें दी जा रही होंगी और कोई प्रशिक्षण चार्ज नहीं लगेगा? कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है और उनके उनको मिलेगी जो पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा। जी, आज हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बहुत बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। आई नो सब लोग रात भर लगे रहे, कभी कुर्सी कहाँ, कैमरा कहाँ, वेरी डिफिकल्ट सर। थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत की, बैनर्स वगैरह सब बहुत सुंदर लग रहे हैं एंड होल प्रोग्राम वेरी वेल, बट यू ऑल वर्क हेल्प
all the instructions of minister incorporated into the existing program. It is soldering and measurement वगैरह है, सबको भी ताकि ये भी निकल नहीं जाए। और जो सर ने कहा तो सीरियसली लेना है, वो अगली बार यहाँ आएंगे तो यहाँ की बिल्डिंग करेंगे, तो अपने ठीक ठाक रखना, उनके लिए अलग से किट बना के रखना। जी जी। एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप लोग चले गए हैं तो आज तो अब करो हाँ तो वही खड़ा है पहले तो खड़ा है नहीं कल मैडम मैंने ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया, हमने कहा बाद में देख लो बाद में यहाँ लग रखेगा क्या मतलब जब वो लोग आने वाले हैं। हमने केस लगाया बनाया मैंने इन लोगों ने आगे बनाया पाइप केस चला गया हाय मैडम साहब जी मैडम एक चेयर मंगा चेयर थी कुर्सी लेके बच्चे निकल रहे हमने जीएम हमारी कह रहे हमको भी जीएम मैम से मिलना है आपको भी फोटो खिंचवानी, चलिए सारे बच्चों के साथ फोटो ले लीजिए, थोड़ा आगे गए सारे बच्चे आ जाएंगे। ऐसे लो सारे बच्चे। आपका नाम क्या है? आपका और आपका? आप लोगों ने पूजा कर ली? मैम को काम कराना हाँ जितेंद्र ले लो आप सब लोग आइए मैम जी ओम
श्यामावर्तकाग्रता शराधार यामुदेमां तस्मै देवाय हविषा विधेमः ओम आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिद्धं यस्य देवायस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेमः ओम यः प्राणतो निविशतो मैत्वगेन्द्राजा जगतो बभूव से यस्य विश्वदा तुष्टा तस्मै देवाय हविषा विधेमः ओम एवं दरुग्रापृथिवीचरिणायेन सहस्रवितं नाकायो मन्दरिक्षेरसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेमः ओम प्रजापतेन तद्येतानने विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जूर्मस्तन्वस्तु वयं श्यामपतेरयिणाम् ओम संतो वन्दोर्व्यास विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसा नास्तित्वे धामन्य धैर्यन्तः ओम अग्नये सिद्धाराय अस्मान् विश्वानि देव अग्नान् विद्वान् वेद अस्मद्युनान् वेनो कृष्णान्ते नमः विधेमः। सर आप करेंगे चंदन मैम को भाई हाँ मैम वो वाला बना उसमें अलग राजेश जी आपका है बिटिया बेटी मंत्र के बाद बोलूँगा देव मृत्युजम होताररत्नधामम मैम आपको बोलना ओम तत्सत श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्ररात्रे वैशत्व मनोत्तरे कलियुगे कलिप्रथम चरणे मुख संवत्सरे 1,97,29,29,29,000 श्री संवत 2078 मासानाम मास उत्तमे भाद्रमासे शुक्लपक्षे एकादश्याम तिथौ 17 सितंबर 2021 भारत खंडे जम्मू द्वीपे आरावर्ती के दिशे परम पवित्र वाराणसी काशी नगरे बनारस रेल इंजन कारखाना प्रतिष्ठाने पूजन यज्ञ करण्याम श्री विश्वकर्मा यज्ञ कर्म करण्याम अहम मृत्युंजय कुमार सिंह पंडित प्रवीण नियुक्ता अस्मि। प्रोसेस फ्लो को चेंज कर दिया यहाँ का अलग प्रसाद है। डेफिनेटली गोइंग टू कम टू बनारस। गाड़ी में कौन आया था अल्फा का बनारस आएंगे सर। तो अक्टूबर में आ जाएंगे। पीएम इज एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर तो अक्टूबर में आपके पास तो दिखाने को है पीएम को नहीं और कोई नहीं चीज अब लेकिन एक एसजी लोगो खड़ा है हम लोगों ने काम किया है। एक तो ये है मार्केट पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे हैं जी। एंड ही विल गो दैट जो अपना ये है जो वेल्डिंग इंस्टीट्यूट पक्का जाएंगे। आप
लोग सब वेल्डिंग सीख लो। तो ये अभी वेल्डिंग के लिए आएंगे और कुछ देखने के लिए भी आएंगे। मैकेट्रॉनिक्स दिखा देंगे मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे हैं हमारे मैकेट्रॉनिक्स पे रिपेयर करते हैं मशीन को पार्ट वगैरह करते हैं। हाँ ड्रॉ करके मैकेट्रॉनिक्स स्टार्ट कर देंगे करने में आ जाएंगे मैडम देख करके क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बच्चे बुला के रखेंगे। मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन है कंक्रीटिंग वो नोट कर लिया बता देंगे किसमें